Hello everyone, Namaskar. Welcome to the second episode of Let's Reveal. I would like to thank everyone for the amazing response what we got in the first episode. And this episode cannot be bigger because we have with us someone whose entire life and achievement is nothing less than a Bollywood blockbuster. He is the Badshah of aesthetics and Nawab of Lucknow. And Naam to suna hi hoga. Welcome Dr. Neeraj. Thank you. Thanks for the wonderful introduction. नाम तो सुना ही होगा, मुझे अच्छा लगा। एक मेरे साथ काफ़ी सारे मेरे दोस्त लगाते हैं, नाम तो सुना ही होगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। इट्स ऑल टुगेदर अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। I know you since a long time. Yeah. We It's have, I'll almost say, like 2 decades, I think. we have grown up together. वो वक्त भी याद है जब हांगकांग की गलियों में एक कॉफ़ी पी थी। आज ये वक्त भी है कि कभी कभी आप किसी 5 स्टार में भी कॉफ़ी पिला देते हैं। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म No, it's जो a आपने इसको फॉर्म किया है। एंड लास्ट एपिसोड आई ऑल्सो enjoyed thoroughly, for yours and Dr. Soma Sarkar. It was enlightening, it was casual, and above all, it was very entertaining with many take-home messages. So thank you very much for making me a part of this podcast no, or absolutely, the and series of the enlightening it's events. a real honor to have you, sir. And but एक चीज बोलना चाहेंगे, like I think everybody knows about the Candid Show. So sitting on a host as a host and hosting you, it's a real honor and privilege. And I think like after 5 years also, when we meet so many people, so many doctors, everybody recalls of that memories what we have created, and it's a lifetime memory, I can tell. It's a lifetime memory. See, that changed my perception of life. See, whatever we say, it was entertaining or it was engrossing. It was a lot of efforts was put in by me, you, and all of Absolutely, the the entire team, back entire end team. team. बट एक चीज़ है कि उसने ज़िंदगी तो बदल दी। सबकी ज़िंदगी के बारे में जानते जानते ये एहसास हो गया कि ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं और ज़िंदगी जो हमको सिखाती है, वो जो दिखता है वो नहीं है। मतलब आज जो आप किसी को देखते हैं, आज मैं कुंतल को देखता हूँ तो कुंतल आज नहीं है। इट्स अ क्यूमुलेटिव एफर्ट ऑफ मैनी पीपल फ्रॉम योर फैमिली, ऑफ योर फ्रेंड्स, ऑफ योर सपोर्टिंग टीम। आपका खुद का एक दिन की जर्नी नहीं है। ये वक्त आपको कुंतल बनाता है या वक्त आपको किसी को एक स्टार बनाता है। तो ये दिस इज़ द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू आवर डेस्टिनी दैट वी ऑल आर सिटिंग हियर एंड टॉकिंग कैजुअली अबाउट लाइफ। ज़िंदगी ने ऐसे मौके दिए हैं कि हम लोग ऐसी बात कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, डेफिनेटली। और लाइक एक चीज़ है कि कैंडिड शो, लाइक आज इट वाज अ टचिंग मोमेंट, जिनसे भी हम लोग ने बात किया, सो दैट वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशन टू टेक इट फॉरवर्ड। और जब भी मैं आपसे मिलता हूँ बोलता हूँ सर, नहीं, करना चाहिए दोबारा, देखिए, कैंडिड 2.0 ऐसा कोई आना एपिसोड चाहिए। नहीं था जिसमें मतलब एज ए होस्ट मैं न रोया हूँ, और जिसमें एज ए होस्ट मतलब एज ए गेस्ट हमारे गेस्ट की आंखों में आंसू ना आए हों। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग दिस। नॉट दिस आई रियलाइज फ्रॉम द सेकेंड थर्ड एपिसोड, बट द फर्स्ट एपिसोड वॉज व्हेन आई डिड इट वॉज लाइक पार्ट ऑफ लाइक वी नॉर्मली वी प्रेजेंट एवरीवेयर। हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम बहुत सारे डेलिब्रेशंस वी डू एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। दैट आई felt that I'm doing something like this. But by the end of the first episode, I was crying. By the end of the first episode, that was Dr. Jayashri's. एब्सोल्युटली, Dr. J's episode was also enlightening, and thereafter series of you name it, the एवरीवन bosses of एवरीवन the field, उनसे बात करना, उनके बारे में जानना, उनकी ज़िंदगी में जानना, उनकी ज़िंदगी के उन अनछुए पहलुओं के बारे में जानना जो किसी को पता नहीं है। वो लम्हे, वो लाइक इट वाज लम्हे समथिंग they टचिंग। lived, they also lived those moments with us. एब्सोल्युटली, They cherished it, they shared it, and that sharing was like something which they have never done. So that was every 10 minutes there were tears in the eyes, and then there was laughter, there was joy, there were some sad moments, but all cumulatively, if you see, बहुत कुछ दे के गया Candid TV. so to start with now, your, like I think everybody wants to know, like थोड़ा आपके बचपन के बारे में, बचपन के बारे में, like your childhood. I was blessed actually. I was youngest in the family of four, और मैं चूँकि सबसे छोटा था इसलिए सबसे दुलारा था। एंड माई एजुकेशन वॉज So you're born in Lucknow only.
No, my father was a bureaucrat. Okay. I was born in a small town in UP known as Hamirpur. Okay. It's near Banda. It's now, Okay. have you heard of Chitrakoot? It's near that. Okay. Uh, and then thereafter, because my father was in transferable job, so he thought, and he tried his level best to give me the best possible education. So I got an admission in class 4th in Nainital, the Birla, and then thereafter I was there since till 11th, and then 12th I did from Bareilly because I wanted English medium UP board. He wanted to change my board. So my education was good from one of the best schools. So that was the, I always say, it's like मेरी जो नींव है वो अच्छी रखी गई थी. एजुकेशन, द बेसिक एजुकेशन एंड द बोर्डिंग एजुकेशन मेक्स ए डिफरेंस. आप जो मुझे आज देखते हैं कि मैं कहीं बोल सकता हूँ या कहीं, इफ़ आई एम नॉट सो स्केयर्ड ऑफ द पब्लिक, that was a basic teaching which came from the boarding school. So that's one I of think the it makes USP. you more responsible. More, I don't know responsibility, but it's makes you versatile. You have seen the, see at the class 4th you are doing everything of on your own. आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं है, पर दोज मैट्रॉन, दोज द टीचर्स, दे आर लाइक योर पेरेंट्स. तो इट्स लाइक ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लाइफ विच गिव्स यू ए लॉट फॉर द लाइफ. यानी आपकी ज़िंदगी के लिए इतने सारे लेसन पहले ही मिल जाते हैं कि आपको एक मुकम्मल इंसान बनाता है. तो ये है मेरी अर्ली एजुकेशन. देन आई डिड माई MBBS इन माई फर्स्ट तो पहले अटेम्प्ट. से आई गॉट, आपको क्लियर था कि डॉक्टर नहीं ही नहीं, इन बनना माई है? लाइफ नथिंग वॉज क्लियर. सी Okay. एवरीथिंग हैज़ हैपेंड फॉर माई फादर सेड क्या करोगे? मैंने कहा पता नहीं. बोले तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी है, बायोलॉजी ले लो. हमने बायोलॉजी ले ली. बायोलॉजी ले ली, उसके बाद पढ़े तो सिलेक्शन हो गया. मुझे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई गॉट वाज किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज, लखनऊ. ड्यूरिंग माई काउंसलिंग आई रिमेंबर जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो माई रैंक वॉज वेरी गुड. इट वॉज 81 ऑल इंडिया रैंक CBSE. तो मुझे दिल्ली में भी मिलता, मुझे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, इवन बेटर कॉलेज, आई से KGMC वॉज वन ऑफ द बेस्ट दैट टाइम. पर उस समय जो रैंकिंग में और ऊपर थे कॉलेज वो भी मिलते. पर माई फादर सेड इतने साल बाहर रह चुके हो, कम बैक टू, एंड वी वर बेस्ड एट लखनऊ दैट टाइम. सो वी चोज लखनऊ ओवर बीइंग होम देयर. तो KGMC वॉज माई MBBS. देयर आफ्टर माई आफ्टर MBBS इट वॉज like life was giving till MBBS. Everything was in shape, everything was in place. Suddenly क्या है ना, ज़िंदगी झटके देती है और ज़रूरी भी होते हैं. सब कुछ स्मूथ नहीं होना चाहिए. तो जोर का आफ्टर झटका था? MBBS जोर का झटका था, जोर के झटके लगे. MBBS के बाद सब कुछ आसानी से नहीं हुआ. आई गॉट, but you have to, in nutshell, I don't want to share that much. In nutshell it was like full of challenges, full of failures. जो मुझे चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, जो मिल रहा था वो चाहिए नहीं, उस समय चाहिए नहीं था. तो एंड ऑफ द डे आई वेंट टू पुणे, ज्वाइन देयर DOth and DNB, stayed there for 6 months, ran away. I joined somewhere, something else, stayed there for 6 months. So these things were happening, and it happened by the time my friends completed their MD, I was still struggling. So this was 2.5 years of my, and that time I had suicidal tendency also. So आज जो आप मुझे देख रहे हैं वो होता है. फेलियर गिव्स यू courage also, but failure can make you or either break you. This is what I always say. अगर आपको लड़ना नहीं आता तो आप गए. तो शायद How you handle that? See, I was, the best thing it happened was I was married also. So she was along with me, and after MBBS only we got married, me and my wife Dr. Toleka. So she was with me, but end of the day लोगों की expectation होती है. ससुराल वाले भी सोचते थे यार कैसा दामाद मिला, बेटी का तो हो रहा है, इसका नहीं हुआ. वो हो रहा था, बट जो मुझे चाहिए था, आई वांटेड ऑर्थोपेडिक्स, आई वाज नॉट गेटिंग इट. एंड अदर देन दिस दे वर, Okay, so you wanted orthopedic. आई वांटेड ऑर्थोपेडिक्स. डर्मेटोलॉजी हैपेंड टू मी. वो तब की बात है जब कुछ नहीं मिल रहा था. तो अगले जो मैंने 2 साल के बाद जो एग्ज़ाम दिया उसमें डर्मेटोलॉजी मिली तो मैंने सोचा ही नहीं दोबारा. Okay. मतलब फिर वो लाइक आई वॉज इन द स्टेज की बेगर्स आर नॉट चूजर्स. आज जो लोगों को दिख रहा है, डर्मेटोलॉजी वॉज नेवर माई फर्स्ट चॉइस. But after this, see, when I did dermatology for 6 months, I realized कि ये मेरे साथ जो हुआ भगवान ने जो भी किया, whatever happens for good, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ हुई है. So that 3 years were the worst, and वो मुझे वो सिखा के गई कि आज तक जितने challenges आते हैं तो मुझे लगता है इससे ख़राब टाइम तो मैं उस वक्त देख चुका हूँ. the worst phase of my life that I have already passed. I always think that way. The challenges came thereafter also, but somehow I handled it better than how I handled during that phase of that challenging times. So उसके बाद फिर MD, उसके बाद फिर
आप लोगों से मिलना हुआ फिर तो ज़िंदगी आपको पता ही है. I still remember we met in- Dermatology has given me a lot. This is what I always say. It happened to me. This is the truth. I never opted for dermatology. I never wanted dermatology. I never thought of that. मुझे मालूम भी नहीं था मैं करूँगा नहीं करूँगा. My psyche was not ready for dermatology because कभी सोचा नहीं था. But that's the best thing which has happened to me. I think ultimately इस एक दूसरे के लिए हो गई. And then the best thing after my family and my wife and daughters, I say dermatology is part of my life. Absolutely. So वो उसने मुझे बहुत कुछ दिया. आज मैं बैठ के आपके साथ अगर आप मेरी ज़िंदगी पे बात कर रहे हैं तो डर्मेटोलॉजी की वजह से है. Then when I came out, it's like I never thought of what to be. I said ना मैंने कभी कुछ plan में I never planned for tomorrow. Yeah, so It like happens. you, I which try year- to make my today better. so which year Hoping came this out, tomorrow sir? will be good. Yeah, which year you passed out? I passed out my MD in 2006. Okay. टेक्निकली आप मुझसे पूछेंगे तो 2003 में मुझे पास हो जाना चाहिए था जो भी मुझे करना था. तो माई लाइफ टुक मी 3 years बैक विच आई कवर्ड अगेन ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द आफ्टर पोस्ट MD एंड माई प्रैक्टिस एंड देन आफ्टर दिस व्हेन यू से कि उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस I रहे think I हैं. met you in 2006 or 7. 2006 and we 7. met Yeah. when I was planning something to do Yeah, that yeah, nothing was yeah. in my. I joined Kaya Skin Clinic, 20 then I years, joined 20, one of the. almost 20 years back. Then I did my fellowship from Singapore National You Skin were in Center. I was NSC, there yeah. for 8 months. So a lot of things happened that, and then when some, it's like life takes a lot of things, but it gives you also. See, it's like always you get, it gives you a second chance, it gives you a third chance, but you should realize that it's a chance. You should be ready to pick it up. बार बार नहीं देती है. अब आपको एक मौका मिला है तो उसको यूटिलाइज़ करिए. शायद उस वक्त भी मौके मिल रहे होंगे, मेरे बुरे वक्त में शायद मैं उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा था. दिस What इज़ हाउ was, आई टेक. if I ask you, what was that one moment which you feel ki, which has really inspired you or like really changed your thought process or how you think about life? Something. See, if you ask me, the moment which changed my life was my failure. The moment when the second exam, when I wanted something, एक मेरी रैंक जितनी मैं चाहता था वो नहीं आई, तो दैट चेंज माई लाइफ. लोगों को लगता है कि फेलियर, देन आई थॉट कि अब तो कुछ करना ही है. So that was one moment, and then the other moment was changed my life was when when my daughter was born, the first daughter. She was, then after that I got my MD. Okay. For the audience, when she was in my hand on the day one, that's what I felt, that something big has happened to me and it's bigger than any other failures, and thereafter my life changed. एक बेटी के आने से ज़िंदगी बदल गई, ये मैं हमेशा सोचता हूँ. तो कई सारे लोग मजाक करते थे, पहली बेटी आई तो तेरी क्लिनिक खुल गई, दूसरी बेटी आई तो चेन बनने लगी. तो एक और Daughters are special. हाँ, daughters are like special. Daughters are always special. So you always want, because in You even say in, na, son is son till he gets his wife, a daughter is daughter throughout your life. So this is what the saying is. and so you are based you are working with Kaya in Delhi, right? And I was started my career from Mumbai. Okay. हाँ. Okay. मैं डॉक्टर जी सापले के साथ भी काम किया. अच्छा. मैं JJ हॉस्पिटल भी उनके साथ जाता था. मैं आई वॉज इन काया ऑल्सो. देर आफ्टर I came to Delhi in the Rajouri Garden in Punjabi Bagh, then handling a lot of other things. I joined the medical college era also in between, and that time also I was not thinking what I have to do. My father wanted that एक दो छोटे So से when you clinic. thought कि आपको private practice में like derma clinic का सोच concept कहाँ से आया? एक दिन रात को आया. Okay. ऐसा कभी Coffee सोच के. पे? हाँ, उस समय कॉफ़ी ही थी. Okay. हाँ, तो उस समय कॉफ़ी थी. तो कॉफ़ी के साथ यूँ कह लीजिए बैठे थे तो कह रहे कुछ करना है. जैसे मैं काया को मैं लखनऊ लेके आने वाला मैं था. काया के लिए काया के लखनऊ क्लिनिक मैंने खोली. तो मैंने ये सोचा कि जब मैं किसी और के लिए इतनी सारी क्लिनिक्स खोल सकता हूँ, चला सकता हूँ, तो वाई नॉट माइन. सो आई थॉट फॉर ओपनिंग माई क्लिनिक. तो आई बड़ा प्लेस जो भी हम लोग के पास, and it was out of the city that time, which you now see that's one of the poshest location in Lucknow. Those days So I opened a small center, you can say, but that small was bigger by the standards of that time actually. Absolutely. Those days लोग कहते थे, मतलब my seniors, without naming, that he has got a suicidal tendency at that time, thinking of aesthetic dermatology clinic in Lucknow, aesthetic clinic which was promising aesthetics in Lucknow.
was kind of a suicidal thought, according to my seniors. So, कोई नहीं था, I think. उस We were समय the कोई one नहीं of the था. first. Everybody thought chances of failures are higher than Much higher. सक्सेस. पर वही एक चैलेंज था. तो अब तक तो भाई मैंने कभी ये सोचा ही नहीं. जब इतने सारे फेलियर देखने के बाद लगता था वो क्या होगा आगे, इससे ज़्यादा बुरा वक्त तो मैं देख चुका हूँ. So like my next question comes like ये एपिसोड हम जब सोच रहे थे करने, तो we were thinking it was on a concept of aesthetics in the Noki. So how you see aesthetics in 2008 and aesthetics in 2025? It's changed completely. Okay. And change for good also, change for bad also. A lot of things which have happened, which is kind of, I'll think, giving to the fraternity. But many, I think the kind of changes which are not so welcome. And neither we should appreciate those kind of culture in our aesthetic practice. Now coming back to, ये तो बहुत आराम से मैंने बता दिया, लेकिन एक लाइन में अगर कहना हो तो एस्थेटिक्स इवॉल्व हुई है. एस्थेटिक्स 2008 से 2007 जब से आप काम कर रहे हैं, और आज 2025 में एस्थेटिक्स इवॉल्व हो गई है. इवॉल्व होने का मतलब है कि किसी ज़माने में आपको किसी 2-3 सुपरस्टार हुआ करते थे पूरी एस्थेटिक इंडस्ट्री में. आज वो जैसे इंस्टाग्राम से बॉडी बिल्डिंग करके और कई सारे सोशल मीडिया से पंप होके, देयर आर thousands of key opinion leaders and many aesthetic practitioners without any basis, without any degrees also sometimes, and without any knowledge also. My next question was like, how do you differentiate between a dermatologist and aesthetic practice? Dermatologist is what I feel personally should be actually an aesthetic practitioner. When you talk about skin should be confined to dermatology, which the Indian government overall, even the public awareness should be there, and public should know this fact. Skin specialist एक ही होता है जो dermatologist होता है, जिसने MD dermatology, DNB या DVD की होती है. हार्ट का कुछ करना है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हाँ. हैं, तो स्किन का तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. मैं हमेशा देखिए दो चीज़ें समझिए. छोटी सी बात है, आप कपड़े सिलवाने कभी मोची के हैं तो जाते नहीं. जाते हो तो बताओ. वो रिस्क आप लेते नहीं. हाँ? वैसे ही जूते सिलवाने आप टेलर के पास नहीं जाते. तो यू अंडरस्टैंड, पब्लिक अंडरस्टैंड, ये मोची है, ये टेलर है. हमारे टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है जब उनको व्हेन दे हैव टू सेलेक्ट ए एस्थेटिक प्रैक्टिशनर और स्किन स्पेशलिस्ट, तो वो देखते हैं जो, आई मीन टू से, you have to understand who's qualified, who's unqualified, and who is absolutely not qualified. There are different categories. किसको किस चीज़ के लिए आपको अडॉप्ट करना है वो आपको देखना पड़ेगा, और वैसे ही हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट फेटर्निटी को भी बिहेव करना पड़ेगा. इट्स लाइक आई ऑलवेज से, रादर देन वी टॉकिंग अबाउट दिस क्वैकरी एंड लॉट ऑफ थिंग्स, हमारी लाइन इतनी लंबी होनी चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें छोटी हो जाएं. You asked me about so many aesthetic practitioners in dermatology. Aesthetic practitioner in the society other than dermatologist, this is what you asked me. कुंतल जी, 2-3 बॉलीवुड डायलॉग इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, which will answer everything, because the show is confined to this is aesthetics in Bollywood style. डर्मेटोलॉजिस्ट को तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमने डर्मेटोलॉजी में एस्थेटिक्स क्या शुरू की, सारी कायनात ही एस्थेटिशियन हो गई. और फिर आपने पूछा कि डिफरेंस क्या है. द मोस्ट फेमस आइकॉनिक डायलॉग ऑफ अमिताभ बच्चन इन दीवार, मेरे पास माँ है, शशि कपूर जी का डायलॉग था वो. वैसे ही हम डर्मेटोलॉजिस्ट का एक डायलॉग है, हमारे पास डिग्री है, हम डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. ये जितने हमारे डेंटिस्ट फ्रेंड हैं या जितने नॉन क्वालिफाइड एस्थेटिक प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है. तुम एक डर्मेटोलॉजी की कीमत क्या जानोगे रमेश बाबू. जब भी somebody they are cribbing about कि ये एस्थेटिक प्रैक्टिस कर रहा है, वो कर रहा है, तो मैंने कहा दिमाग में यही रखो, जब कोई मिले ऐसा तो कह दो बेटा तुमसे न हो पाएगा. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू बिलीव इन एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट. दिस इज़ व्हाट माई मैसेज इज़. अपनी लाइन लंबी करो, दूसरे की लाइन छोटी करने में दिमाग मत लगाओ. हम पैदा डर्मेटोलॉजिस्ट हुए थे, हम डर्मेटोलॉजिस्ट ही रहेंगे. स्किन के बारे में उन्हें ज़ीरो पता है तो उनसे अपनी बराबरी मत करो. कि ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है
कि हम उस वक्त दूसरे की फ़िक्र ज़्यादा करने लगते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। हमको ये एहसास नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से ये मानना रहा है कि दूसरे की फ़िक्र मत करो, हम क्या कर सकते हैं उस पे दिमाग लगाओ। I know, like you have been running a successful practice, and a lot of doctors, a lot of young doctors look up to you. They like they see like how Dr. Neeraj has come up to this level. I want to know from you, like who you see as your inspiration. वो है डॉक्टर गणेश भाई सर। उनकी जो जर्नी मैंने देखी है और उसके साथ उनके कैंडिड टीवी भी किया, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। डॉक्टर अनिल गंजू दिल्ली से काफ़ी इंस्पायर हूँ। ये तो हमसे सीनियर जनरेशन है। जो आप फिर एक शख्स जो हमारी जनरेशन का है जिसने स्टेडीली एक बहुत छोटी स्टार्ट लेते हुए आजकल एस्थेटिक्स का बादशाह, डर्मेटोलॉजी का बादशाह है और जिसको सब कोई जानते हैं, एंड ही स्टेडली ही सो फोकस्ड, वो है डॉक्टर सचिन धवन। तो मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हूँ। देयर लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम, देयर लॉट टू लर्न फ्रॉम मैनी। आई कैन इन्यूमरेट द नेम्स, पर होगा क्या कि अगर किसी एक शख्सियत का नाम लूँगा तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। दिल में लोगों को बहुत चोट लग जाती है कि इसकी तारीफ़ क्यों हो गई। तारीफ़ इसीलिए अकेले में करनी चाहिए और उनसे ही करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं इस मंच से अगर उनकी तारीफ़ कर दूंगा तो बाकी लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि हर कोई तारीफ़ के काबिल है, कोई कम कोई ज़्यादा। देखिए एस्थेटिक्स जो आप बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिशनर्स में आपको सब ये गोलमाल के प्लॉट की तरह है। अब सब गोलमाल है हमारी एस्थेटिक्स की फील्ड में। आपको समझना पड़ेगा कि हर फील्ड में सुपरस्टार होते हैं, हर फील्ड में विलेन होते हैं, हर फील्ड में सपोर्टिंग कास्ट होती है, फिर हर फील्ड में तुषार कपूर भी होता है जिसको डायलॉग्स नहीं मिलते। मतलब वैसे ही कुछ आएंगे क्वैक्स ज़िंदगी में आपकी और आके चले जाएंगे, उनके बारे में क्या ही सोचना। उनका एक रोल है हमारी मूवी में, वो दूसरों को बता रहे हैं कि गलत एस्थेटिक्स क्या होती है, गलत की पहचान करेगा। अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो आप सही को पहचानोगे कैसे? तो ये जो सोसाइटी है, बहुत सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं। यू वेट जस्ट फॉर 5 years and after 5 years this quackery will be gone from aesthetic dermatology. This is I think, or maybe reduce, or maybe the public awareness will be at the highest peak. Public वो जिस awareness तरीके is से important. ये चीज़ें हो रही हैं ना, हर आदमी समझेगा ये तुषार कपूर है, ये ऋतिक रोशन है, ये सलमान खान है इस इंडस्ट्री का। अब वो बनिए ना, आपको क्या ज़रूरत है इन तुषार कपूर से अपने आप को कंपेयर करने के लिए। डोंट माइंड, तुषार कपूर इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, बट रोल अच्छे नहीं मिले उसको। उसी तरह जो ये जो क्वैक्स हैं, ये लोग अच्छे हैं पर इनको डिग्री अच्छी नहीं मिली। Okay, sir, like अभी जैसे like there are so many laser companies or aesthetic companies and everything all across, ठीक है? And after so many years of practice, like अगर आपको नए क्लिनिक के लिए या आपके करंट को अपग्रेड करने के लिए, so what are the criteria आप सोचते हैं कि चलो ये कंपनी से मशीन लेंगे या ये टेक्नोलॉजी लेंगे, सो कौन सा प्रेफरेंस है और क्यों है वो, और व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द न्यू डर्मेटोलॉजिस्ट? See, you can get similar quality of machines from multiple vendors. What makes a vendor different from others is the trust. परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये सब दिस कम्स विद टाइम, एंड ट्रस्ट लीड टू सक्सेस। यानी भरोसे पे ही ज़िंदगी कायम है भाई। भरोसा नहीं तो मैं मशीन ख़रीदता ही नहीं। और भरोसा सिर्फ मशीन का नहीं होता, भरोसा उस मशीन के पीछे इंसान का होता है। I think trust is one of the most Trust is important. the major, trust and relationship, nothing else. And it's not only about machine, it's about the after sale service of machine. बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मशीन खरीद रहे हैं तो सिर्फ एक फेस वैल्यू तो है ही है कुंतल की, पर उसके अलावा उसके पीछे मेरी मशीन ख़राब हुई तो कितने दिन बंद रहेगी, कितने दिन मेरी पेट पे लात पड़ेगी, कितने दिन मेरी रोजी रोटी ख़राब रहेगी, उन सब चीज़ों की बात। कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, कितना आपका बिल, या जो आप लोग जिसकी कोई एक्चुअली क्या है ना कि वी डर्मेटोलॉजिस्ट, वी डॉक्टर्स डोंट अंडरस्टैंड दिस। मे बी देयर लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स लाइक व्हेन वी चार्ज, आप लोग सोचते हैं कि हम लोगों को लगता है कि यार एक छोटी सी चीज़ तो बदली है ना, आईसी उड़ गई या कुछ उन्होंने कहा एक छोटा सा तार फ्यूज़ हो गया, बिल इज लैक्स। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये तो इसमें वो तो 10 रुपये का था, हमारा नो हाउ वॉज 99,000। ये नहीं हो सकता। देयर शुड बी सम सेट क्राइटेरिया।
And this happens, these things, that's why I buy the machine from only them, those who I have relationship with. Reason being, that's my kind of trust with them, कि आगे कुछ ख़राब नहीं होगा, होगा तो ये संभाल लेगा. ये बहुत बड़ी बात है कि भाई संभाल लेगा. तो लाइक आप ऑलमोस्ट 20 years 20 साल से आप पेशेंट देख रहे हो सर. हाउ यू सी लाइक 20 साल पहले. पेशेंट तो और पहले से देख रहे हैं, जब BBS फर्स्ट ईयर में गए थे. हाँ, तो 20 लाइक साल से प्रैक्टिस पे जा रहे हैं, हाँ. प्राइवेट प्रैक्टिस में हो, तो आप लाइक क्या चेंजेस देख रहे हैं सर, टाइप ऑफ पेशेंट्स और उनके बेसिकली उनके क्वेश्चंस. There is over awareness now. Okay. See, 20 years back there was very less questions from the patient. There were only two goals. One goal was to reach doctor and second goal was to get, जिसको आप कहते हैं आराम मिलना, या मुझे उसका जो राइट वर्ड इज़ कि व्हाट यू से दैट कि उसका सॉल्यूशन मिले. ये दो गोल होते थे पेशेंट के. पहला गोल है वहाँ तक पहुँचे, दूसरा गोल है सॉल्यूशन मिल जाए. बीच में गूगल नहीं होता था. With time, this and over awareness, there is deficit of trust with time, and thanks to social media, thanks to this social media entrepreneurs, I never say the influencers, because I always give this message to the audience wherever I am: don't get influenced by Tom, Dick, Harry. इन्फ्लुएंस किससे होना है, कितना होना है, उसके बारे में सोचो. अब आप किसी क्लास 10th वाले से ऑन देयर स्टाइल, ऑन देयर गुड लुकिंग पर्सनैलिटी अगर आप इम्प्रेस हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू. पर आप उससे जब नॉलेज की बात, विजडम, सी विजडम नेवर कम्स विद दिस coming on the social media. It has to be acquired. That comes with time, that comes with knowledge, that comes with hard work, and there is always a long learning curve for that wisdom. Experience बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो मेरा मानना यही है आज की इस, जब आप कहते हैं कि बहुत इट्स सी, आज तो 20 साल में तो फिर भी हम लोगों ने वो जर्नी देखी है. जो हमसे पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं, पहले केवल ट्रस्ट होता था और ट्रस्ट के बाद सॉल्यूशन होता था. अब यहाँ ट्रस्ट जैसी, वेल ट्रस्ट इज डेफिसिट है, ट्रस्ट माइनस में जा रहा है, बिकॉज वेन एवर द पेशेंट कम्स दे नो लॉट ऑफ थिंग्स कि व्हाट डॉक्टर्स आर डूइंग, what the hospitals are doing, what on social media we are propagating, not the doctors, the kind of influencers. तो वो धीरे धीरे डेफिसिट आती जा रही है ट्रस्ट की, जो कि सबके लिए एक चैलेंज हो रहा है, वी एज ए प्रैक्टिशनर, बिकॉज नन ऑफ द डॉक्टर्स, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स एंड दिस इज़ व्हाट आई से, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ कि कोई भी डॉक्टर किसी मरीज़ का बुरा नहीं चाहता. बुरे से बुरा डॉक्टर भी, अगर आप जिसको रेटिंग में बुरा मानते होंगे, वो मरीज़ की अच्छाई चाहता है. बीइंग द लीव फाइनेंसेस अपार्ट, लीव द ट्रीटमेंट्स अपार्ट, द फर्स्ट थिंग विच कम्स बैक ऑफ माई माइंड, द ऑल ऑफ द, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए क्वैक एंड ए क्वालिफाइड डॉक्टर. हमारे लिए पहले जो होता है वो ये होता है कि हाउ कैन आई गिव रिलीफ टू दिस पेशेंट, what can I do this can match the expectation of the patient. And then comes the economics, then comes anything else. So this makes us different from others, and this with this time, ये अभी जो 20 साल के टाइम में मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ बदल गया है. Patient had a lot of questions. It's like making a deal. We are like service providers and they are consumers. जब से कंज्यूमर एक्ट में हम आ गए ना, तो we are service providers and they are consumers. So doctor patient का relationship is gradually fading down, which I think it's a big a setback for the medical fraternity, which all of us has to come together and revive this relationship. So आपको क्या लगता है सर, like the artificial intelligence AI, how it will change further? Like पहले Google, what you said, now what AI. So will it change in for a good reason or for a bad reason? In one line, AI can't replace the human touch. Medical profession is talking one-to-one, counseling the patient. AI में ना एम्पैथी होगी, ना सिंपैथी होगी, सिर्फ डायग्नोसिस होगी. और वो डायग्नोसिस भी 80% टाइम गलत होगी, क्योंकि वहाँ विजिबिलिटी नहीं है. इन डर्मेटोलॉजी स्पेसिफिकली जो दिखता नहीं है उसको लोग समझ नहीं पाते. तो अभी तो सिर्फ सुन के और पिक्चर देख के डायग्नोसिस बनाना हमारे में बड़ा मुश्किल काम है. तो आई डाउट दैट AI will be the, AI can be as support to the patient. Okay. They can give an idea that what to be done. It can't replace the medical profession. It can't replace the dermatologist. With that human touch is lacking there. Empathy नहीं है, वो आपको पता ही नहीं, आप बात किससे करेंगे. Right. जब तक आप डॉक्टर से सुनेंगे नहीं कि आपको क्या है वो. एंड
it's a human tendency. So human mind, how it works. If I say something to you कि आपको psoriasis है, तो ठीक है, आई एम ए डॉक्टर, यू विल गो बैक टू द गूगल, रिसर्च अबाउट इट. पर अगर एआई ने कह दिया कि सोरियासिस है तो 100% डॉक्टर से सर्टिफाई कराने जाएगा. तो दैट्स इक्वेशन हैज़ टू बी देयर. नथिंग इज गोइंग टू मेक ए इम्पैक्ट ऑन दिस dermatology practice or the clinical practice. That will be always there. For small little things like acne, they'll try. जब भी कोई बड़ी बात होगी तो उनको याद तो पांडे जी आएंगे. लोग कहेंगे कि यार तुमको तो मैंने गॉड समझा था, तुम गॉडजिला निकले. AI will be something like this. Everybody will understand with time in medical science. Maybe rest of the things, because AI can't replace this medical practice. And this is my message to the audience also, and to my fellow colleagues also. Don't worry about AI. AI से क्या डरना है? AI अपनी जगह है, वो अपना, जैसे अभी गूगल आया तो क्या लोगों की दुकानें बंद हो गई क्या? गूगल इज़ टू एक्वायर नॉलेज. टू प्रैक्टिस यू गो समवेयर एल्स. गूगल आपसे, आप गूगल में सिर्फ रेटिंग देख लेते हो, करते वही हो जो आपका मन करता है, जो आप करना चाहते हो. इज़ जस्ट टू एनहांस योर नॉलेज. तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा. तो हिंदुस्तान की तरह हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा. तो वैसे ही हमारी डर्मेटोलॉजी है. चलो, लेट्स स्विच ओवर द रोल प्लीज़. ओके. आपने मेरा इंटरव्यू बहुत ले लिया, बहुत सारे ऐसे ऐसे घुमाव वाले सवाल पूछे, और मैं अगले 2-3 मिनट जो है ना, ओके. तो ये जो मैं 2-3 मिनट नहीं, एक मैं चाहूँगा जो भी शो का डायरेक्टर है मुझे 7 मिनट दे दे. 70 मिनट नहीं चाहिए, और ये 7 मिनट मुझसे कोई नहीं छीन सकता. ठीक है सर. ठीक. मैं बंद कर 7 देता हूँ मिनट में आप सब बंद कर दो, हो गई. स्क्रिप्ट को भी आप छोड़ दो. हाँ. मेरे कुछ सवाल हैं, एंड ट्रीट मी लाइक व्हाट वी डर्मेटोलॉजिस्ट थिंक अबाउट द कंपनीज व्हेन यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द ट्रस्ट, अबाउट द सेल, हाउ आई चूज द कंपनी. राइट. मुझे ये बताइए कि आप डॉक्टर्स को कैसे जज करते हैं. मतलब मैंने ये देखा है कि कई बार क्या है ना, देयर इज़ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. किसी डॉक्टर को आप प्राइस में भी कम दे देते हैं, किसी को आप कम नहीं करते, किसी को आप ऐसा सोचते हो कि, मतलब कभी मन में आता है ऐसा कि बहुत अच्छी सेल हो गई, जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये की चीज़ 200 में बिक गई, तो अच्छा आता है, अरे आज तो बना डाला. देखिए अभी लाला क्या होता है, लाइक डेफिनेटली हर एक डॉक्टर को एक प्राइस में तो नहीं जाता है. ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट. ठीक है. तो एज आपने बोला ना सर, ट्रस्ट एक चीज़ है, ट्रस्ट. दूसरा रिलेशनशिप, और तीसरा है कि लाइक हाउ द डॉक्टर इज ऑल्सो सपोर्टिंग द कंपनी. आई थिंक ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोर्ट मीन द एकेडमिक सपोर्ट, और academic support also, like whenever there is some clinical challenges, also as a speaker, sharing the knowledge. Okay, वो So बहुत this important. is for the audience. When you buy a machine, keep doing good work with that and share with the parent company. Let them use this as pre and post. So they'll Yeah, definitely. और वो कैसे support होता है, and I think relationship and trust, वही दोनों which- तरफ से वो relationship दोनों तरफ से है, और trust है. and which is the नहीं, main कई thread. बार क्या होता है, आप लोग का कोई टारगेट होता है कि एक महीने में इतनी सेल करनी है, सब कंपनीज के रहते हैं सर, तो उसका प्रेशर होता है. सब कंपनीज का प्रेशर रहता है, टारगेट रहता है. हाँ, नहीं, उस Quarterly, टारगेट हाँ. में आप लोगों को तो स्ट्रेस है ही है. तो Definitely. मुझे लगता है आप डॉक्टर्स को भी स्ट्रेस देते हैं सडनली. जो मतलब जो मैं देखता हूँ रेट हाइक होती है. अभी 2-3 साल पहले मैंने कोई मशीन खरीदी थी, से फॉर 150 रुपीज़. हाँ. आई वॉन्ट से इन लैक्स. राइट. और आज मैं बात करता हूँ 3 साल बाद, सर वो तो 3 साल में दुनिया बदल गई, अब तो वो 300 की हो गई. मैं बोलता हूँ सर, अब तो पहले ये बढ़ गया. 3 साल पहले भी जीएसटी था. Yes, मतलब 3 आप साल पहले 10% सर- हाइक इज ओके. नहीं सर, 3 साल पहले. व्हाई सडनली दिस? Okay, I will tell you two major reasons for all the companies. I think one is the dollar. US dollar 3 साल पहले जो 70-75 में 72 होता था, आज 88 है. ठीक है, वो एक और बढ़ने वाला है. जो प्रेडिक्शन है नेक्स्ट 6 महीने में इट विल बी अराउंड 90-95. ठीक है, US डॉलर्स आप का. कहना चाहते हैं वक्त की गलती है, ज़मीर अभी जिंदा है. वो इस डॉलर का एक है. दूसरा है सर फ्रेट चार्जेस. आई थिंक फ्रेट चार्जेस एक है जो डेफिनेटली पोस्ट कोविड बहुत बढ़ गई है ड्यू टू द ऑयल चार्जेस एंड एवरीथिंग. सो उसके लिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इम्पोर्टेड हो रहा है, तो उसमें वो फ्लक्चुएशंस है. बट आई थिंक फिर भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज आई वुड कैन टेल कि दे
कि पूरी जो कॉस्ट है दे हैव नॉट पास्ड ऑन टू द डॉक्टर्स, चलिए। दे हैव एब्जॉर्ब समथिंग एंड दे पास्ड ऑन समथिंग, सम पोर्शन. ओके, थैंक्स फॉर दी कंसर्न कि आप लोग इतना सोचते हैं। पर मुझे एक और चीज़ है, हाँ मैं सर. आपको बताता हूँ, जैसे हमारी इंडस्ट्री में भी होता है, आपके में भी Right. होता है, मुझे मशीन खरीदनी होती है ना, हाँ सर. जैसे आपसे मैं कोई मशीन लूँगा ना, तो मैं आपके जो नहीं, ये नहीं कहूँगा आपके राइवल, मतलब आपके जो दूसरे कंपनी फ्रेंड्स के फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, हाँ. दी फ्रेंड्स फ्रॉम दी हाँ. सेम फेटर्निटी, या. मैं आपकी मशीन के बारे में उनसे पूछता हूँ। वो बारीकी से बता देते हैं, अरे सर उसमें तो एक प्लेट कम है, एक डायोड की स्टेक कम है, उसकी तो पावर कभी आपने देखी है, उसकी कभी पल्स देखी है। तो ये आप लोगों में कोई ये नहीं होता है, कोई इथिक्स का वो रहता है? क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, आपस में जब मशीनें बिकती हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि सर ये डॉक्टर तो उनका है, ये डॉक्टर तो इनका है। पहली बात, डॉक्टर मैं हमेशा मैसेज देता हूँ किसी का नहीं है, डॉक्टर Absolutely. रिलेशनशिप का है। और रिलेशनशिप हर इंडस्ट्री में चलती है, तो डॉक्टर कंपनी की भी चलेगी। अगर मेरी कुंतल से रिलेशनशिप है तो 20-22 साल की है, कोई नया बच्चा आके उसको, इट्स लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। एक सम मैं टाइम देर आर सम मिलेक्ट रिलेशनशिप इन बिटवीन, बट द ऑनेस्ट रिलेशनशिप ऑलवेज वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई कैन टेल यू वन थिंग बाकी व्हाट रिलेशन में एक्स्ट्रा मैरिटल समझ लेता हूँ। व्हाट एक्चुअली इज दो सर. क्या हो जाता है लाइक व्हेन इट इज, जो हमेशा मैं अपनी सेल्स टीम्स को बताता हूँ कि इफ़ यू गेट एन ऑर्डर फ्रॉम एनी डॉक्टर, दे यू हैव डन 10 गुड थिंग्स, एंड इफ़ यू आर लूजिंग एन ऑर्डर डेफिनेटली द कॉम्पिटिटर हैज़ डन समथिंग Better. बेटर देन यू. सो रैदर देन पुटिंग समथिंग कि चलो ये डॉक्टर उनका है या डॉक्टर अपना है, इट इज़ लाइक इट्स आवर जॉब टू डू, नहीं, इट्स ऑलवेज वैसे टू एंड वी शुड नॉट प्ले बिलो द बेल्ट. we should not. On a lighter note, we always ask the other Yeah. company with the similar kind of machine, Yeah. and they come with the blueprint and the black and white of that machine, what you have. Similarly, I ask the other person also. So you always have. It's a good idea to have it. It's not a bad idea. They are doing their job. As or long like- as they are doing it I scientifically, told as like- long as they are doing it, there is no malpractice and the malinterest in that. लाइक वेरी रिसेंटली वन डॉक्टर आई वाज स्पीकिंग विदाउट नेमिंग, तो उन्होंने बोला कि चलो ये है, तो मैंने बोला मैडम द बेस्ट थिंग इज नो, यू कॉल दैट कंपनी एंड अस, दोनों को एक साथ बैठाओ, ठीक है, एंड दोनों से बात करो. तो आपको मशीन पे भरोसा थे, अपनी काबिलियत पे? टेक्नोलॉजी पे भरोसा है. चलिए, टेक्नोलॉजी पे मतलब। सो डेफिनेटली लाइक एंड सी जितना ट्रांसपेरेंट होता है आई थिंक उतना वो ईजी हो जाता है. सो आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड नो इट इज़ लाइक आज इतने कुछ अवेलेबल है सर. सो एंड बट स्टिल स्पेशली इन इंडिया डूइंग ए बिजनेस आज भी और कल भी रहेगा वो, दैट इज ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप. I always think the belief has to be there in you. I have seen that belief in you. In other words, in a Bollywood style अगर आपको कहना हो ना, तो आप हमेशा कह सकते हैं, कुंतल हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये आपकी जो मैंने एक इतने सालों में देखा है ना, विद सो मेनी, आई हैव सीन योर जर्नी Right, नाउ definitely, कमिंग टू so द many रिवील years. एंड बीइंग वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द काइंड ऑफ गॉड हैज़ बीन काइंड। तो Absolutely, ये जो आप जहाँ खड़े हुए वहीं से लाइन शुरू हुई, आज भी ऐसा ही होता है, भगवान करे ऐसा ही होता रहे। सर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक आई थिंक KOL विच इज़ अ की ओपिनियन लीडर जो अपने बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहले क्या होता था, लाइक एज ए कंपनी, लाइक वी यूज्ड टू choose or ways to get few KOLs all across the board. आज के डेट में we see people wants to become a KOL, okay, and especially lot of doctors without naming anyone. So like how what has changed over the time? क्या change You हुआ है? mean to ask कि they want to become a KOL very early in the career? Very very early This is while what they the start their question practice. is. Because everybody wants to be KOL. Yeah. But to be a KOL, there are so many pillars to be a KOL. पहले मैं KOL को एक डिफरेंटली डिफाइन कर देता हूँ। Okay. वो की ओपिनियन लीडर मत समझिए उसको। Okay. KOL is a key which can open any lock. Okay. वो की बनने में टाइम लगता है। See the normal keys, if you order any key, हाँ. this is known as master key. हाँ. Just go on the Google and type how long it takes to get a master key. हाँ. For a good, which can open almost all the locks. He'll talk about it will take months. And just type, I want to get one normal key. It will take just Seconds, hours. yeah. Seconds. So this is the difference to be a KOL. आपको एक ऐसी चाबी बनना है जो सारे ताले खोल सके. यानी you should know the subject. This comes with again the wisdom, the experience. And with experience, it's like आपकी जो आप ओपिनियन देते हो, या जो आप एडवाइस देते हो, या जो
आप उस कंपनी को आगे का रोड मैप जिसको बताना है या सब्जेक्ट के बारे में बताते हो कितना फ्रूटफुल है, वो आएगा नॉलेज से कि आपका एक्सपीरियंस क्या है. विदाउट नोइंग अबाउट द सब्जेक्ट, विदाउट नोइंग द काइंड ऑफ, विदाउट हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ दैट केओएल बनने में टाइम लगता है. और केओएल बनने के लिए तो इट्स नॉट कंपनी केओएल नहीं बनाती, डर्मेटोलॉजिस्ट खुद केओएल बनता है, उसको टाइम लगता है. लेट द आपको मतलब मुझे ये थोड़ा बड़ा वो लगता है व्हेन समबडी सेज कि हम केओएल बनना चाहते हैं. And trust me, like इट्स लाइक विद अस इट हैज़ हैपेंड. हमारी जनरेशन के साथ तो ऐसा हुआ, लोग आते थे कि सर हम आपको केवल बनाना चाहते हैं. सो दिस हैज़ चेंज. it has changed. इट हैज़ चेंज. आई हैव नेवर आस्क्ड एनी कंपनी टू मेक केवल. मेरी नज़र में तो ये केवल कौन है ये होता था कॉल. तो लाइक वी हैव टू लीव दिस कॉन्सेप्ट, लेट द टाइम डिसाइड हु विल बी केवल, बिकॉज ये हर जनरेशन से दो चार केवल निकलेंगे, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीड. Yes. What is most important thing is like you have been traveling all across the world, okay, and I think you are one of the most traveled dermatologist. So how do you see? आपको कैसा लगता है like when you go to conferences in Europe or US and in India? What is the difference? What is the difference in terms of the content, and what is the difference in terms of the speakers and the attendance? And also like I know you are running one of the most successful organization in India, the SARC AD. So almost 10 years, I think 9 years, 9-10 years. 9-10 years. There is huge difference. See, rest of the things I won't comment. Our content is also good. We are doing one of the best work in the world, and it's Indians. And I'm proud of this. The way our generation has proved the kind of charisma they have, the kind of inbuilt character they have, the kind of service they have given to this dermatology and aesthetic dermatology. None of the countries have done this. ये हमारे पास numbers का एक वो है. प्रॉब्लम यही है जो एक शॉर्ट कमिंग मुझे लगती है कि दीज बिगर कॉन्फ्रेंसेज, बी इट EADV, बी इट इमकास, आई एम नेमिंग इट, स्ट्रेंथ इज वन थिंग विच मेक्स देम डिफरेंट एंड मोर सक्सेसफुल. I think the global, ग्लोबल है उनका. हम Yeah. लोग इंडियन ग्लोबल के अलावा क्या है ना, विद टाइम वी हैव टू गिव समथिंग डिफरेंट टू द ऑडियंस. अभी वी ऑल आर थिंकिंग ऑन दिस. Some of the organization from India, maybe our ideal, maybe any private organization has to be global. With I more think global, SARC AD well, has SARC gone to AD Middle East. has done this, has gone to but Middle East still and it's other parts. long way to go. So this is the basic difference when I think the content and the quality of speaker is excellent in India. See, you Yeah, know, no the doubt about Indians, it, no doubt Indians are about it. ruling the aesthetic world in terms of making policies and as you say the KOL internationally, तो अपने हिंदुस्तानी हर जगह KOL दिख रहे हैं ना आप. हमेशा the amount of work जो कर रहे हैं India, the number of patients they are seeing, it's amazing. Number of patients, numbers का है मतलब. We it's like without quote, I was doing a fellowship from National Skin Center, so I found one difference just in one line to make it to cut it short. They were better in technology, I was better in clinical acumen. This all has happened due to number game, my exposure. Everybody's clinical exposure. They used to ask you what you were thinking. They'll ask, call that Indian doc, he'll let you know कि what वो क्या सोच रहा है without any investigations. So this has come with, it's not with, and it's true with all Indian dermatologists, not only me, because it's the exposure which makes us different from others. So what do you see like when an Indian dermatologist as a speaker or as a delegate visits any global conference, the perspective how they are seen 10 years back and how they are seen today, has it changed? Definitely it has changed. Okay. See, overall Indian perception has changed. We leave dermatology only. Yeah, See, we that's as, definitely. so it's similarly in dermatology also. We dermatologists, this from our generation, and all credit to our seniors, those who started this, who changed the overall face of the dermatology. Perception. And overall perception of dermatology of only being the Daat Khat Khujli ka doctor to this kind of lasers and the devices and the aesthetics and so many other writing books and publishing papers. Overall face has changed of dermatology in India, and globally they have accepted that we Indians are one of the best dermatologists. So outside the clinic, okay, what is Dr. Neeraj Pandey? See, I am ऊपर वाले ने एक खास चीज़ दी है कि मैं इनसाइड ऑल्सो डॉक्टर नीरज पांडे एंड आउटसाइड ऑल्सो आई एम डॉक्टर नीरज पांडे. बट येस, खाली टाइम पे मैं जैसे इनसाइड देर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस. देर आर, इट्स लाइक इनसाइड यू कैन से इट्स ए पॉलिश्ड नीरज पांडे,
इट्स लाइक अ कट डायमंड। Okay. अंदर तो मैं हीरा हूँ, पर मैं बाहर जो हूँ ना वो अनकट। जो लोगों ने देखा नहीं कि हीरे की जर्नी क्या है, मैं वैसा हूँ। मतलब मैं खाली टाइम पे दीवारों से भी बात कर सकता हूँ, मैं खाली टाइम पे खुद से भी बात करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है खुद से बात करना, ये रियलाइज़ करना कहाँ गलत थे, वो खाली टाइम पे ही होता है। खाली टाइम पे मैं यूँ ही डायलॉग्स बोल लेता हूँ, मुझे कभी धर्मेंद्र जी याद आ जाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन याद आ जाते हैं। सी एवरीबडी हैज़ टू अपने आप को आपको थोड़ा पैपअप रखना है, थोड़ा अपनी जो एनर्जी है ना उसको हमेशा सही जगह लगानी है। तो खाली टाइम पे मेरा यही होता है खुद से बात। कभी कभी ये तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर आप समझ लेंगे, पर मैं खुद से बात करके कई बार सही डिसीजन भी I लेता think हूँ। one thing a lot of people doesn't And but know. I khali time is means off from clinic. Oh, from the clinic. Off from the clinic, my family is my strength. I try to give as much time as I can, and then we plan lot of things together. And off from clinic, the traveling is my hobby, Yeah, you travel a lot. and my hobby is to do something which makes me happy. I यानी think one thing हंसना I है। know about you, what a lot of people doesn't know, it is like you are a professional cocktail mixer. You did a course for it, Yeah, I did a specific 2 months mixology course. mixology course. और वो आप यू विल बी सरप्राइज टू नो वो तब किया था जब मैं पीता भी नहीं था। मतलब आई वॉज वेरी ओकेजनल ड्रिंकर, अभी भी वैसा ही हूँ, बट जस्ट फॉर माई सेक ऑफ आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। बट कभी इसको अपना प्रोफेशन नहीं माना, लेकिन कॉकटेल अच्छी बना। ज़िंदगी खुद में एक कॉकटेल है, ज़िंदगी मेरी कॉकटेल बना रही थी, मैंने सोचा चलो कॉकटेल ही सीख लेते हैं। जब मैं गया था तो ज़िंदगी मेरी कॉकटेल बना रही थी, मैं जगह जगह मिक्स हो रहा था, तो मैंने सोचा लो मिक्सोलॉजी सीख लेते हैं। तो देन आई गॉट टू नो कि एक मिक्सोलॉजी हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ लेसन्स फॉर द लाइफ। You don't, you see, not only liquor which makes a good cocktail. You need a ice into that. You need a triple sec into this. You need sometimes the lemon juice or the lime juice into that. You have to mix a lot of masalas to make a good cocktail. It's not only one ingredient. Similarly, if you want to be, you ask a question about KOL, a good And the practitioner, quantity. and the quantity. किस समय में कितनी क्वांटिटी किसकी डालनी है, ये वक्त के साथ आता है। तो टू बी एनीबडी हु इज़ अ गुड, सी इफ़ यू लर्न द गुड मिक्सोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। यू हैव टू, जजमेंट हैज़ टू बी राइट। थोड़ा सा इधर उधर गए आपकी कॉकटेल गई, वैसे ही ज़िंदगी में थोड़ा बहुत डिसीजन इधर उधर गई आपकी ज़िंदगी गई। Sir, another thing I would like to ask. So, as a successful practice, ठीक है, so definitely there are a lot of your well-wisher, ठीक है, and definitely थोड़ा criticism भी होता है, वो तो like चोली दामन का साथ है, ठीक है. So one of the like criticism you have heard about yourself and you uh, took it in a candid way or you responded whatever if you want to share. See, lot of, see, if you are the best thing about me, if somebody criticizes me, I think that I am getting famous. अच्छे कुछ तो आदमी लोग कोई कहेंगे, लोगों अच्छे का काम है कुछ कहना. तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट यू शुड, इट्स ऑलवेज लाइक criticism is you read your like Google reviews. I have not read my reviews since 5-7 years. This message for the Not from the my patient, I'm talking not from the fraternity. fraternity से भी जो लोग कहते हैं, तो फिर मैं एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का शहंशाह तो मैं ही हूँ। ऐसे सोच के, मतलब दिस इज़ वॉट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। फील बैड, एज ए ह्यूमन यू हैव टू फील बैड, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी। पर वॉट टू डू इफ़ दे आर सीनियर्स, समटाइम्स आई टेक इट लाइक अ लेसन टू मी, कि मेरे बारे में क्या सोचता है, चलो एक आदमी और पता चल गया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिटिसिज्म इज़ लाइक ऑफ एक पुरानी वो है, शायद उसको मुझे पूरा नहीं आता, एक निंदक नियरे राह की है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो एक आपको क्रिटिक साथ में रखना चाहिए जो आपकी बुराई कर सके। हर आदमी आपकी तारीफ़ नहीं कर सकता। आई गेट टू नो, सी व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, मे बी माई क्रिटिक इज़ मोस्ट, सी राइट, आई थिंक इन दैट वे ऑल्सो। इफ सम ऑफ द सीनियर सेज ये गलत हो गया तुमसे, तो आई ऑलवेज गो बैक होम एंड थिंक दैट आई माइट बी रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट लाइक प्लस ऑल्सो एंड माइनस ऑल्सो। बुरा लगता है तो भूल जाता हूँ, अच्छा लगता है तो उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। सर 20 साल 22 साल के प्रैक्टिस में क्या लगता है कि ये अभी इनकम्प्लीट है, ये अधूरा रह गया जो आपको बाकी है करना? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तभी तो मैंने शुरू किया है। जब लोग जहाँ से ख़त्म करते हैं वहाँ मैं शुरू करता हूँ, तभी तो मैं शुरू हुआ ही नहीं हूँ। मैं अभी यही सोचता हूँ, अभी आई हैव डन नथिंग, आई हैव नॉट स्टार्टेड इट, एंड दिस इज़ फॉर द ऑडियंस, दिस इज़ फॉर माई फ्रेटर्निटी। अभी मैंने शुरू नहीं किया है,
अभी आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर नीरज ने भी कुछ शुरू किया है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ करना चाहूँगा। आई डोंट केयर अबाउट सक्सेस, आई डोंट केयर अबाउट फेलियर्स, आई केयर ओनली अबाउट माई एफर्ट। जो भी करूँगा 100% करूँगा, बाकी ऊपर वाला है। और सर, लाइक लॉट ऑफ पीपल नो कि आप यू आर अ वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट, ओके? सो कुछ मिमिक्री कुछ हो जाए। आर्टिस्ट, these are two contrast word. क्यों सर? I mimic the artist actually, you know. Okay. I'm not. Artist is artist. We are Artist like is artist. we try to copy. Copy. I try to copy many artists. With हाँ. time, it's not been. I have not been so regular. My college days and my school days, I used to do it a lot. वन जो सबसे फेमस डायलॉग मुझे लगता है वो धर्मेंद्र जी का लगता है। आप उसमें सोचिए लाइफ के कितने मैसेज हैं। आदमी कितना फ्रस्ट्रेट होगा जो कहेगा कि मतलब भाई मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या बोलूँगा, कुंतल में तुम्हारा खून पी जाऊँगा। मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूँगा, तेरा सर फोड़ दूँगा। आप धर्मेंद्र जी से सीखना पड़ेगा। आप कैसे अपने गुस्से को डिफरेंट वे में कह सकते हैं। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊँगा। इट्स लाइक उन्होंने इंसान को छोड़ दिया। उन्होंने कहते इनको क्या बोलना, उसी को कुत्ता माना, उसी को कमीना माना। तो उन्होंने कुत्तों को इतनी इज्जत दी जो किसी ने नहीं दी, तो लोग उसको गलत समझते हैं। मैं धर्मेंद्र जी से काफ़ी इम्प्रेस रहता हूँ और इसीलिए कभी कभी वो भी कहता हूँ, जब मैं बहुत खुश होता हूँ घर पे तो अपनी वाइफ से भी कह देता हूँ, बसंती तेरा नाम क्या है बसंती। इट्स लाइक आई डू इट ऑफन एंड दिस कीप्स मी ऑन। पर इस माइक पे इतना अच्छा नहीं हो रहा। जब कभी मुझसे गलत होता है तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं गलत हूँ, मैं कहता हूँ माइक गलत है। इट्स अ साइन ऑफ ए बिग आर्टिस्ट, यू नो। खाली टाइम पे मैं एक बार और बोलूँ। सर, आपके वन लाइनर तो बहुत फेमस है, एकदम मशहूर है। तो कोई लखनवी अंदाज में कोई जोक सुनाइए आप। कुंतल आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। जोक खत्म हो गया। ठीक है सर, एक कस्टमरी रैपिड फायर होता है जहाँ पे आपको कोई भी हैम्पर नहीं मिला जाएगा, ठीक है? एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप इतने ट्रैवल करते हैं, व्हाट इज द फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? प्राग। वेयर यू वांट टू गो अलोन? यहाँ नहीं बताऊंगा। यानी फिर फेवरेट फूड अदर देन लखनवी फूड, अदर देन कबाब? लखनवी फूड, हाँ। अमृतसरी छोले कुलचे। ओके। मैं देसी हूँ। एंड अदरवाइज देन इटालियन फूड, देन दिस ए लॉन्ग लिस्ट, बट जनरली आई लव इटालियन। फेवरेट हिंदी सॉन्ग? फेवरेट हिंदी गा सॉन्ग के सुनाना पड़ेगा सर। नहीं, मैं बता दूंगा। आप किशोर कुमार के गाने अच्छे गाते हैं। मुझे एक गाना बहुत पसंद है ओके। जिसमें एक लाइन है कि मीरा भी यहाँ बदनाम हुई। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ था, ये मुझे गाना बहुत पसंद है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाइए रहना। तो दिस इज़ व्हाट माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज़। आई लव दिस सॉन्ग। अब मैं चाहूँगा एक लाइन आप, ये चलता रहेगा, कुछ आप सुनाई दीजिए। ये दो अच्छा। लाइन सिर्फ मुझे सुननी है। कुछ तो मीन्स, हाँ, कुछ तो लोग। अच्छा, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कट कर देना ये बाबा। तू चीज़ है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो ऐसा ही ये लाइफ है। आपने मुझसे पूछा था कि क्रिटिसिज्म सबके साथ हुआ, भगवान राम जी नहीं बचे, तो हम लोग तो इंसान हैं। So, like you have so many technologies. What technology you feel which is the mostly used in your clinic? See, when I buy a machine, I use everything. But if you ask me which I love the most and which I think is the best technology which has happened to aesthetic dermatology practices, according to me, many who will differ from me, is Q-switch laser. Okay. The most versatile machine, which I think all the dermatologists who possess one. आप बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। वर्सेटाइल है, आमिर खान की तरह। तो
मल्टीपल इंडिकेशंस के लिए यूज हो सकता है। मल्टीपल इंडिकेशन किसी भी रोल में फिट हो जाता है। सर एक फाइनल टेक होम मैसेज आपके फिल्मी स्टाइल में। बाबू मोशाय, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और सेकंड इज़ टू मी व्हाट हैज़ हैपेंड, द मैसेज टू द ऑडियंस इज़ sometime wrong train takes you to the right destination, and believe in this. If the wrong thing happens with you, don't worry about this, maybe something good is about to happen. तो ये मेरा मानना है, ज़िंदगी ऐसे ही जिए, हंसो जियो मुस्कराओ, क्या पता कल हो ना हो। My message in this, I heard in some Bollywood movie that Shah Rukh Khan's dialogue that don't let your past blackmail your present to ruin your future। यानी आपके पास्ट को आपकी आज के वक्त के साथ खेलने नहीं दीजिए, जिससे आपकी आगे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। I think to host a host is the most toughest thing, and I don't know how we have done it. So it's you. You can rate us, comment us, view us, and it was amazing interacting with Dr. Neeraj. And we like to thank you for coming all the way from Lucknow. And I know you have a very busy schedule, making a time for us, spending the evening with us, and really thankful, sir, for making it. And so we'll be back with the new episode, and see us, like us, and view us. Thank you. Namaskar. And not the same host, the host will be changed। Thank you। और मुझे मालूम है आज के बाद आप मुझे बुलाएंगे भी नहीं, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ, डेफिनेटली नहीं बुलाएंगे। नहीं अगर होस्ट मैं वादा करता हूँ कि अगर आज के बाद आप मुझे अगर बुलाएंगे तो मेरा ये वादा है आपसे, मैं दोबारा ऐसा ही करूँगा।